बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। इन लेक्चर्स को समझने के लिए जिन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पेश आएगी उनमें शामिल है साइंस 6 की कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की टेक्स्ट बुक। इसके साथ साथ कुछ होमवर्क दिया जाएगा आपको। इस होमवर्क के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी वो है समर पैक ग्रेड 6 के लिए। इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स और टीचर किसी किस्म की कुछ रहनुमाई चाहें तो इनके लिए रिसोर्स पैक ग्रेड 6 के लिए एक बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। इट्स अवर 5th लेक्चर एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अवर लास्ट सेंस ऑर्गन दैट इज स्किन। स्किन is related to touch, or you can say it more precisely, it is related to temperature, pressure and pain. It contains the receptors of all the three factors. And the SLO that we will achieve through this lecture is explain the structure and functions of skin. Again, we will discuss first of all the structure and then the functions of our last sense organ, skin. If you open your textbook at page 26, you will find the topic that is relevant to our SLO, that topic 2.6, structure and functions of skin. Its remaining part is on page 27, and then at the end of the page you will find the functions of the skin. So let's start our lesson. Everyone knows that human skin is the outermost covering of the body. It is the largest sense organ. Why it is called the largest sense organ? Because it is covering and protecting throughout the body parts from the head to the toes. As it is the most external organ, so it protects the various kinds of damages such as loss of water and attack from outside. Every injury, every cut received on our body first is received by our skin. The skin receives stimulus and sends it to brain. As skin is a sensory organ, it must contain the stimulus, it must contain the receptors, and each receptor, as you know, is specified for a particular type of stimulus. And which stimulus are sensitive and detected by the skin are, we have discussed earlier, temperature, pressure, pain, etc. Skin receives the changes in these three factors and then send it to brain for analysis and processing. When we talk about the structure of skin, there are three major structures. There are three major layers. First one is epidermis, which is the outermost layer we can see. Then comes the dermis. It is the second layer beneath the epidermis, and then the hypodermis, which is the deepest layer of skin. Each layer of skin has its own characteristics. The superficial layer of skin, which is called epidermis, the outermost that we can see, is thin and tough layer, and that contains hair above the surface. The hair arises outside the body from epidermis. Although the roots of hair are very deep in the dermis. Being the outermost portion of the skin, it is waterproof. Relatively waterproof, not completely waterproof, but relatively. Water can absorb and desorb from the skin through this region. It prevents bacteria, viruses and other foreign substances from entering into the body. Because how skin performs this, its pores are very, very small and check the entrance of all these structures. The epidermis, along with other two layers beneath, also protects the internal organs, muscles, nerves and blood vessels. All the internal organs are protected by epidermis. Now we'll see the epidermis from another figure, this one. This is the epidermis, a more clear and resolved image of skin. Here you can see the roots arises outside from this layer while they have deep roots in the dermis. This is the epidermis, and you can see it is relatively tougher. It has the openings
pores for sweat and sebaceous and oil extraction. Sweat as well as oil is released out of the body through these pores or openings. Next comes the dermis. First we'll study the structure of dermis and then we'll see from its diagram. After the epidermis, there is another layer which is called dermis. It is the middle layer of skin. It is a thick layer of elastic tissues. It is thick but not thicker than epidermis. Epidermis is a thicker one. It gives the skin its flexibility and strength. अब डर्मिस में होता क्या क्या है? डर्मिस में मौजूद है नर्व एंडिंग्स, ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज एंड वेन्स, sweat glands that produce sweat, sebaceous glands that produce oil, smooth muscles, hair follicles, the hair arises. As the dermis contains nerve endings, so it is the layer that is sensitive to pain, touch, pressure and temperature. This point is very important from the exam point of view, and the importance of dermis is above all other layers due to the presence of these sensory endings. The sweat glands produce sweat in response to heat and stress. The sebaceous glands secrete sebum or oil. This sebum keeps the skin moist and soft and act as a barrier against foreign substances. अब हम इसी बात को उस डायग्राम के थ्रू देखते हैं. एपिडर्मिस के बाद आती है डर्मिस, सेकेंड लेयर ऑफ स्किन, thicker one but not more than epidermis. As you can see, it contains the sweat glands. These are the sweat glands that produce sweat under the difference in temperature. It also contains root hairs from the root shaft arises. It contains the sebaceous glands. यहाँ पे आप देखिए कि ये जो sebaceous glands हैं ये hair follicle के साथ present है. बाज़ दफ़ा हमारी स्किन बहुत ऑयली हो जाती है, हमें फील होता है कि हमारे हेयर बहुत ज़्यादा ऑयली हैं. तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं, वो हमारे रूट हेयर्स के साथ प्रेजेंट हैं. वहाँ से ऑयल रिलीज होता है जो कि हेयर के साथ मूव करता स्किन से बाहर आ जाता है. इसके अलावा इसमें ये ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट हैं. रेड कलर में जो आप देख रहे हैं वो आर्टरीज हैं और जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही हैं ये वेन्स हैं. मसल्स प्रेजेंट हैं. इरेक्टर मसल है. इरेक्टर मसल वो मसल्स हैं जिनको हम कहते हैं कि किसी भी थ्रेट में, किसी भी अनवांटेड सिचुएशन में हमें फील होता है कि हम पे कपकपी सी ताली हो गई है या हमारे रोंगटे खड़े हो गए हैं. तो इस बात का मतलब ये होता है कि जो हमारी स्किन में इरेक्टर मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आ गए हैं और ये मसल्स भी हमारे डर्मिस में प्रेजेंट हैं. अब आते हैं अपनी थर्ड लेयर की तरफ जो कि है हाइपोडर्मिस. हाइपो का मतलब होता है अंडरनीथ, नीचे वाली. हाइपोडर्मिस डर्मिस के बाद प्रेजेंट है. थर्ड लेयर है ये स्किन की. इसे सबक्यूटेनियस टिश्यूज बनाते हैं, जबकि डर्मिस को कौन से टिश्यूज बना रहे थे? इलास्टिक टिश्यूज. और हाइपोडर्मिस को सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यूज, क्योंकि आप तस्वीर पिक्चर में देखेंगे कि फैट की ज़्यादातर लेयर्स और थिक लेयर्स हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट है, जबकि डर्मिस में इनकी बहुत थोड़ी सी अमाउंट सिर्फ ग्लैंड्स की सूरत में प्रेजेंट थी. इट हेल्प्स, क्योंकि इसमें फैट्स की लेयर्स प्रेजेंट हैं, सो इट हेल्प्स टू इंसुलेट द बॉडी फ्रॉम हीट एंड कोल्ड. हाइपोडर्मिस वो लेयर है जो हमें हीट एंड कोल्ड और अदर टेम्परेचर चेंजेस या स्वेयर चेंजेस से हमें बचाती है. अब क्योंकि इसमें एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट हैं, इसमें फैटी टिश्यूज प्रेजेंट हैं, सो इट कैन स्टोर energy and act as a reservoir of energy. The fat layer varies in thickness from a fraction of an inch on the eyelid to several inches of the abdomen. अब लेयर की जो हमारी फैट की लेयर है इसकी थिकनेस वेरी करती है बॉडी पार्ट टू बॉडी पार्ट. आईलिड पे देखें तो फैट की लेयर वहां भी प्रेजेंट है लेकिन वो बहुत थिक है, लेकिन एब्डोमेन में ये लेयर बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है. आईलिड में ये थिन लेयर है जबकि एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा थिक है. अब हम इसी चीज़ को देखते हैं इस डायग्राम में. यहाँ पे आप ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं कि हाइपोडर्मिस जो कि थर्ड लेयर है ये स्किन की, इसमें बहुत ज़्यादा यूनिट्स प्रेजेंट हैं फैट की.
ये तमाम फैटी यूनिट्स प्रेजेंट है जो कि एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। इन एडिपोज टिश्यू या फैटी टिश्यूज की वजह से ही ये इंसुलेशन का भी काम करती है हाइपोडर्मिस। ब्लड वेसल्स यहाँ से एंटर होती हैं, सेंसरी नर्व फाइबर यहाँ से अराइज होते हैं और डर्मिस तक जाते हैं। अब हमने देखा कि स्किन की हर लेयर का एक स्पेसिफिक काम है। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट होने की वजह से द मोस्ट प्रोटेक्ट, इसका सबसे बुनियादी काम प्रोटेक्शन है। इसके अलावा रिलीज ऑफ स्वेट एंड ऑयल। डर्मिस की बात करें तो तमाम मेजर स्ट्रक्चर्स डर्मिस में प्रेजेंट हैं, जैसा कि ब्लड वेसल्स हैं, रूट हेयर्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए कि डर्मिस में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। और एडिपोज टिश्यू इज स्पेसिफिक फॉर इंसुलेशन एंड एनर्जी स्टोरेज। इस तरह से ये तीनों लेयर्स मिलकर हमारी स्किन में एक प्रोटेक्टिव एजेंट का काम करती हैं। अब हम आते हैं अपने लेक्चर के पार्ट बी, जो यानी फंक्शंस ऑफ स्किन की तरफ। तो स्किन का सबसे प्राइम फंक्शन तो यही हो गया कि ये एक प्रोटेक्शन ऑर्गन के तौर पे काम करती है, बैरियर है किसी भी एक्सटर्नल हैजर्ड के लिए। और एक्सटर्नल हैजर्ड में क्या चीज़ शामिल हो सकती है? अल्ट्रावायलेट सनलाइट, फिजिकल, थर्मल एंड केमिकल स्ट्रेस, यानी फिजिकली आपको कोई प्रेशर आए, आपकी स्किन पे कुछ प्रेशर आ जाए, कोई चोट लग जाए, कोई पत्थर लग जाए, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है इंटरनल ऑर्गन्स को। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से इंटरनल ऑर्गन्स को बचाती है। कोई केमिकल सबसे पहले स्किन को अफेक्ट करेगा, फिर डीप जाएगा ऑर्गन्स में। डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्शन देती है, अपने टेम्परेचर रेगुलेट करती है स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू। इन्वेजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इन्वेजन को भी चेकआउट करती है। सो स्किन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव ऑर्गन। इट इज द प्राइम एंड द मेजर फंक्शन ऑफ स्किन। दूसरा फंक्शन स्किन का यह है कि इट इज एन ऑर्गन ऑफ सेंसेशन, मीन्स इट इज द सेंसरी ऑर्गन। इट कैन डिटेक्ट द चेंजेस एंड द स्टिमुलस ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड पेन। नंबर 3 इज द स्किन इज एन ऑर्गन ऑफ रेगुलेशन। अब क्या चीज स्किन रेगुलेट करती है? टेम्परेचर रेगुलेट करती है। तो टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है? टेम्परेचर स्वेट ग्लैंड्स की मदद से रेगुलेट किया जाता है। अगर बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो स्वेटिंग के थ्रू इसको नॉर्मलाइज किया जाता है। इसके अलावा जो सबक्यूटेनियस फैट टिश्यूज हैं हाइपोडर्मिस लेयर में, वो इंसुलेशन का काम तो करते ही हैं, लेकिन इंसुलेशन के काम के साथ साथ वो विटामिन डी भी प्रोड्यूस करते हैं। जब भी सन रेज इन एडिपोज टिश्यूज या सबक्यूटेनियस टिश्यूज के साथ स्ट्राइक करती हैं तो एक मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है जो विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। सो लाइट रेस की मदद से, सनलाइट रेस की मदद से विटामिन डी की प्रोडक्शन का मैकेनिज्म एक्टिवेट करने का काम भी स्किन परफॉर्म करता है। अब स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्कस करने के बाद अब आते हैं हम अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क आप करेंगे सबसे पहले टेस्ट एक्सरसाइज 2 में से, जो कि पेज 28 पे है। टेस्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट ए है फिल द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। अगेन आपको हर स्टेटमेंट के साथ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपने स्टेटमेंट पढ़ने के बाद राइट आंसर फाइंड आउट करना है। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 3 इज द लेयर ऑफ स्किन सेल्स प्रोड्यूस द पिगमेंट मेलानिन। स्किन में मेलानिन पिगमेंट यानी कलरिंग पिगमेंट जो हमारी स्किन को कलर देता है वो भी प्रोड्यूस होता है। ये किस लेयर में प्रेजेंट है? क्या ये एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, क्या ये डर्मल लेयर में प्रेजेंट है, हाइपोडर्मल लेयर में, या फिर नर्व्स में प्रेजेंट है? अगर आप पूरे लेक्चर को गौर से सुनते या समझते तो आप इसका आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते थे कि मेलानिन किस लेयर में प्रेजेंट है। Number 4 question is which liquid keeps the skin moist and soft and act as a barrier against foreign substances? अब स्किन से रिलेटेड ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, एलिमेंट है जो हमारी स्किन के लिए एक बैरियर का काम करता है? क्या वो म्यूकोजा है, सीबम है, स्वेट है या एक्वोस्यूमर है? आप स्किन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप इजीली इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। विच पार्ट ऑफ द स्किन इज नॉट इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी, वेदर दे आर स्वेट ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स or hair or melanin? Identify the structure and fill the right circle. Then comes the part B. From the part B you will solve the question number 4, that is what is the composition of dermal layer? Dermal layer is the second layer or the middle layer of skin. It contains the major functions, major structures of the skin. What are those structures? You have to enlist them. Number 5,
Question is, skin is a combination of several glands. What do you know about it? Different types के glands skin में present होते हैं. आपने उन glands का नाम लिखना है और उनका function भी बताना है कि हर gland क्या चीज़ excrete करता है. और gland क्या है? Gland वो structure है, gland एक ऐसा organ है, ऐसा part of the body है that release some secretions. Glands release some secretions. Then comes the review exercise. You will open up your page 29 and solve the question number 9 and 10. Question number 9 is the layer of skin that plays its role in flexibility of skin. अब स्किन की कौन सी लेयर है जो इसे फ्लेक्सिबल करती है? क्या वो एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, डर्मिस है या नर्व एंडिंग से? आपने फाइंड आउट करने के बाद उसका सर्कल फिल करना है. MCQ नंबर 10 इज व्हाट इज द नेम ऑफ ग्लैंड प्रोड्यूस सीबम. सीबम यानी ऑयल. समटाइम्स हमारी स्किन बहुत ऑयली हो जाती है, तो ये किस वजह से होती है? ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्लैंड्स की वजह से होती है. आपने उन ग्लैंड्स को फाइंड करना है. क्या वो स्वेट ग्लैंड्स है, एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स हैं, सीबेशियस ग्लैंड्स हैं या नन ऑफ दिस. Then comes the part B. From this part, you will solve the question number 5. List the functions of subcutaneous fat tissues in skin. Subcutaneous fat tissues आपको याद होगा कि ये hypodermis layer में present है. और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो इस पर्टिकुलर लेयर का कैरेक्टरिस्टिक भी है. वो फंक्शन क्या है आपने बताना है. फिर आप आएंगे पार्ट सी की तरफ और पार्ट सी से आप क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन डिटेल. स्किन का वेल लेबल स्ट्रक्चर, वेल लेबल डायग्राम आप ड्रॉ करने के साथ साथ इसका फंक्शन बताएंगे. जब आप रिव्यू एक्सरसाइज से अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें फिर आप अपना समर पैक ओपन कीजिएगा और समर पैक में से आप पहले एक्टिविटी सॉल्व करेंगे 2.5. एक्टिविटी है राइट द रोल ऑफ स्किन और इट्स पार्ट्स इन गिवन कंडीशंस. ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर स्किन क्या करती है और इसका कौन सा पार्ट हाई टेम्परेचर की रेगुलेशन में इन्वॉल्व है. वाइल टेकिंग सन बाथ, जब हम सन बाथ ले रहे होते हैं यानी स्किन को पर्पसफुली हीट में इसलिए जा रहे हैं कि हमारी स्किन को हीट मिले, तो इसका पर्पस क्या है और स्किन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है. फिंगर बर्न्स बाय कैंडल फायर, जब हम इंटेंस टेम्परेचर हमारी स्किन को मिलता है तो क्या होता है और कौन सा रिसेप्टर, कौन सा पार्ट इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है. वाटर प्रूफिंग में स्किन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है और एनर्जी स्टोरेज में स्किन का कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है. आपने वो उन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स के नाम लिखने हैं उनके फंक्शंस के अगेंस्ट. देन कम्स द MCQ सेक्शन फ्रॉम समर पैक. यहाँ से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16. Number 14 question is which enables skin to protect against foreign substances. क्या वो सीबम है, स्वेट है, ब्लड वेसल्स हैं या हेयर फॉलिकल है. किसी भी फॉरेन सब्सटेंसेस की इन्वेजन से स्किन को कौन सा स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करता है. आपने फाइंड करने के बाद उसकी रीजन बतानी है कि ऐसा क्यों है. इन विच लेयर ऑफ स्किन डू स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट. स्वेट ग्लैंड्स स्किन की किस लेयर में प्रेजेंट है. एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, थिन लेयर. अगेन यू विल गिव द रीजन. Which layer of skin acts as insulator of heat and cold? Identify the skin layer responsible for these and then give the reason. Next comes MCQ 17 and 18. MCQ 17 है कि which layer of skin is called subcutaneous fatty layer, tissues layer. Find the right layer and then give reason. Number 18 MCQ है fingertips and toes are very sensitive area due to why. Why fingertips and toes are very sensitive area? Due to the presence of blood vessels or nerve endings or glands or hair follicles. Sensitivity is related to sensation or nerve cells. So you have to identify the structure which is responsible for the sensitivity of fingertips and toes and then give the reasons. Then comes the MCQ section from your summer pack chapter 2. You will solve question number 16. Why does the skin color differs in Asian peoples and European people?
यूरोपियन और एशियन के कलर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और इसकी वजह क्या है? इनकी वजह इनके स्किन का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। आपने उस स्ट्रक्चर का नाम लिखना है। देन कम्स द question 17. What are the three major layers of skin? Describe at least one function of each. It is very simple question. Question number 18 is, why are old people and infants suggested to sit under the sun for some time? Why? अगर आप विटामिन डी का फंक्शन याद रखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। Number 19 question is, write the functions of sebaceous glands and sweat glands found in the skin. Again, an easy question. Here we have ended up all our sense organs starting from the nose and ending on the skin. Next we'll start our chapter number 3. तो आज के लिए बस इतना ही. Thank you very much.